Good morning and welcome to Excelsior News. Today we have Upasana Mahajan with us for an interview. Upasana is a sports person of international repute. Before I start questioning her, let me welcome her to our studio. Upasana ji, welcome to Excelsior News. Thank you so much for the beautiful welcome. Thank you. First of all, I would like to know from you what motivated you to join sports field, especially powerlifting. Sir, there's a हमारे school times में there was a saying that you sports should be equivalent important for as we think of education. So I think बहुत लंबे टाइम तक मैंने कभी इसको इतना ध्यान से कभी सोचा नहीं लिया नहीं but over the period of time I think destiny was made me to go into sports. I joined gym for some other purpose but I landed into powerlifting. Okay. What is the difference between powerlifting and weightlifting? Right. So there's a technique, and there are some sets, measurements on this. The results are made. Powerlifting is the set of 3 exercises: deadlift, bench press, and squats. So weightlifting is about taking the weight above your head. So 2 different sports are there. Many things are different. Judgments are different. Techniques are different. Trainings are also different for both of them. Powerlifting is mainly power. It's about the power, how much power you have. Weightlifting is about the technique. So usually weightlifters, lifts a lesser the amount of weight than the power lifters. The technique is quite different. Okay. What are the benefits of powerlifting? Okay, sports has benefits, from the ancient times man is made to lift the weights. हम लोग जाने या ना जाने, पहचाने या ना पहचाने, but human is made to lift the weights. So fitness तो आपकी रहती ही है, जिम आप स्टार्ट कर सकते हो, अपनी फिटनेस ऑफ लाइफ आपका रहता है, मसल मास आपका इंक्रीज होता है. सो एक ओवरऑल फिटनेस के दौर पर अगर हम देखें, अगर हम इसको स्पोर्ट्स को ना लेकर भी चलें, स्टिल पावर लिफ्टिंग और वेट लिफ्टिंग और लिफ्टिंग वेट इज़ गुड फॉर द हेल्थ. You joined a gym like an ordinary people are joining in Jammu today also. Then you made it to international level with your championship in Japan. What challenges you faced in all this in your entire journey? Sir, challenges, if I talk about, as a sports person, if I say there are certain challenges because आपकी grooming बचपन से as a sports person नहीं हुई है. बट अगर मैं स्पेशली पावर लिफ्टिंग की बात करूँ, स्पेशली फ्रॉम जम्मू रीजन कि मैंने यहाँ से कैसे मेरे को चैलेंजेस मिले एंड ऑल दैट. सो स्टीरियोटाइपिंग वाज अ मेन रीज़न. सोसाइटी वैसे भी जिम एंड लिफ्टिंग वेट्स को पॉजिटिव नज़र से नहीं देखती है, मेन हो या वुमेन हो. स्पेशली वुमेन में तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम है. अगर आप वेट्स लिफ्ट करते हो तो ये प्रॉब्लम्स होंगी, वो प्रॉब्लम्स होंगी. तो वो बहुत इशूज़ थे. स्टार्टिंग में कोचिंग्स प्रॉपर नहीं मिलना, प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलना, वो चैलेंजेस काफ़ी फेस हुए थे. एंड आई थिंक जिम करना या पावर लिफ्टिंग जो था मोर ऑफ फिजिकल चैलेंज, एक मेंटल चैलेंज भी था. आई वॉज ऑल अलोन इन दिस जर्नी. इट वॉज लाइक अगर आप कर रहे हो तो खुद से पढ़ो, खुद से करो, खुद से सीखो, खुद से गिरो, सब कुछ आई हैड टू डू ऑल ऑन माई ओन. सो अकेले करने में बहुत रिस्क रहता है. अगर आप पास होते हो, सक्सेस मिलती है, स्टिल इट इज़ योर क्रेडिट्स. बट अगर आप फेलियर होते हो, स्टिल इट्स योर क्रेडिट, इट्स योर पार्ट दैट यू हैव नॉट डन इट. सो चैलेंजेस थे, हर चीज़ में मिलते हैं. सो आई फेस्ड मैनी थिंग्स एंड आई लर्न मैनी थिंग्स इन अ पॉजिटिव वे ऑल्सो. How you overcome those challenges? Education. The very most important thing was to educate myself on whatever I was doing. So I educated myself on this weightlifting techniques, powerlifting techniques, how to lift the weights, the proper body forms, which diet I should take, which diet I should not take. एक ट्राइंगल कहा जाता है अगर आपको कोई भी तरह की जिम की ट्रेनिंग्स करनी हो, डाइट, रेस्ट एंड एक्सरसाइजेज, राइट. सो प्रॉपर उसके बारे में एजुकेशन लिया. मैंने डिप्लोमा किया स्पेशली इसी एडवांस एक्सरसाइजेज एंड डाइट में. एंड देन उसके बाद जो लोग ऑलरेडी इस फील्ड में थे उनसे बात करना, रिसर्च करना. आई रिसर्च अ लॉट. अगर आप मेरी पावर लिफ्टिंग जर्नी के टाइम की इंटरनेट हिस्ट्री चेकआउट करेंगे, यू विल सी अ लॉट ऑफ टाइम आई हैव स्पेंड अपॉन द रिसर्च एंड एजुकेटिंग माई सेल्फ ऑन वॉट आई वॉज एक्चुअली डूइंग. What are your achievements so far in this field of powerlifting? I have played many, state level and district level championships. I have played 3-time nationals as well, and I have played 1 international in Japan, 2019 Tokyo Championship. But after that, COVID stuck, so मुझे कभी उसके बाद मौका नहीं मिला, टाइम नहीं मिला. So if I go by the number of championships I have played, it's like 13 plus. You have background of Arya Samaj organization. Right.
how that you're grooming in an environment of Arya Samaj, how that background helped you in this journey of powerlifting? माई डैड वो बहुत ज़्यादा बिलीवर हैं आर्य समाज के. आर्य समाज बेसिकली कोई बैकग्राउंड कोई रिलीजन नहीं है. इट्स ऑल अबाउट द थिंकिंग्स, हाउ द थिंकिंग शुड गो ऑन. आर्य समाज की थिंकिंग प्रोसेस की वजह से मुझे इतनी पॉजिटिवनेस मिली है, फ्री हैंड मिला है कि अगर मुझे Especially that preaching of Swami Dayanand Saraswati for women empowerment in long back at that time. राइट, ही स्टूड फॉर द वुमेन. उन्होंने वुमेन एम्पावरमेंट आई थिंक उस टाइम से शुरू कर दी थी. उनके वेज डिफरेंट होंगे, हमारे वेज डिफरेंट होंगे, हमारी आइडियोलॉजीज डिफरेंट होंगी, बट कि वुमेन के राइट्स के लिए स्टैंड लेना और उनको फ्री हैंड देना कि आप भी इक्वली इंपॉर्टेंट हो और आपको इक्वली इंपॉर्टेंट होकर आपको सिर्फ घर नहीं बैठना है, आपको इक्वल हैंड रखना है एम्पावरमेंट में, सोसाइटी में. तो वो टीचिंग्स मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रही हैं. डर मेरे अंदर से निकला है, किसी चीज़ को लेके वहम नहीं रखती हूँ मैं कि इस दिन ये नहीं खाना, इस दिन ये नहीं करना, उस दिन ये नहीं पहनना. ये सब कुछ मेरे मन से निकल चुका था जब मैंने बचपन से मेरे अंदर ये प्रीचिंग्स थी कि जो भी कुछ करना है जस्ट गिव योर बेस्ट एंड व्हाट एवर यू आर डूइंग. वो दिन हिसाब वक्त देख के मैं कोई चीज़ नहीं करती थी. तो पापा बोलते हैं मेरे ऐसे मुहूर्त इज़ समथिंग, जब मन में आए करना है वो मुहूर्त है. तो मेरे लिए ये पावर लिफ्टिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प हुआ है, ये टीचिंग्स, ये प्रीचिंग्स, कि मुझे बहुत फ्री हैंड मिला है, मुझे बहुत अंदर से एनर्जी मिला है. आई कैन डू एनीथिंग विदाउट बीइंग फियर ऑफ गॉड. इट्स लव ऑफ गॉड, नॉट फियर ऑफ गॉड. Your message about girls and women, right, especially in Jammu and Kashmir. What type of society we have here and how they should do, especially the challenges which are similar that you faced. आई थिंक सर हमारे यहाँ पे अगर हम फेमिनिज़म की बात करते हैं तो फेमिनिज़म को बहुत नेगेटिव वे में लिया जाता है. फेमिनिज़म को मानते हैं कि हम लोग एंटी मेन हैं शायद. फेमिनिज्म का एक पॉजिटिव एस्पेक्ट देख के वुमेन को सोचना चाहिए कि हाउ दे कैन एम्पावर देमसेल्व्स इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग. नॉट ओनली कि हमारे हक हमें दो, इट्स ऑल अबाउट आपने एजुकेशन में कितना अपने आप को एम्पावर किया है, कितना आप फाइनेंशियली स्टैंड करते हो, आप अपनी फैमिली को किस तरह से सपोर्ट करते हो, खुद को कैसे सपोर्ट करते हो. किसी के लिए जीने से पहले कि आपने खुद को एज अ इंडिविजुअल जिया, आपने मॉम के लिए किया, डैड के लिए किया, बच्चों के लिए किया, पति के लिए किया, खुद के लिए आपने कुछ किया. तो जब आप इस दुनिया में आए थे, जब गॉड जी आपको यहाँ पर लेकर आए थे, वो एक पर्पस से लेके आए थे. फाइंड योर पर्पस, मेक योर लाइफ वर्थ लिविंग एंड देन फर्स्ट ऑफ ऑल एम्पावर योर सेल्फ, देन पास ऑन दैट एम्पावरमेंट एंड फॉर सोसाइटी. Anything more you want to tell us about yourself? माई सेल्फ. सो आप मुझसे अभी पूछ रहे थे हाउ आर्य समाज एंड हाउ योर पेरेंट्स प्लेड अ रोल इन योर जर्नी. सो आई थिंक आपने मुझसे पॉजिटिवनेस चीज़ों के बारे में पूछा है कि आप हाउ पॉजिटिव मेड यू एज वॉट यू आर राइट नाउ. बट मेरी लाइफ में सर नेगेटिव चीज़ों का भी इक्वल इम्पैक्ट रहा है. नेगेटिव चीज़ों ने मुझे एक बहुत डार्क फेस दिखाया था लाइफ का. बट एक रिसेंटली मैं नेटफ्लिक्स पे सीरीज़ देख रही थी जिसमें एक कोटेशन था एवरीथिंग इज़ इंटरकनेक्टेड. सो जो मेरी लाइफ के बहुत नेगेटिव पार्ट हुए, स्कूलिंग मेरी हुई थी, कुछ नेगेटिव पार्ट थे, कुछ कॉलेज के नेगेटिव पार्ट थे, कुछ पर्सनल लाइफ के नेगेटिव पार्ट थे. हर नेगेटिव ने वो चेन बनाया है, हर पॉजिटिव ने वो चेन बनाया है जिसकी वजह से आज मेरा आया है. तो मुझे अगर कोई पूछता है ना कि उपासना, इफ़ यू वांट टू गो बैक समवेयर इन टाइम एंड इफ़ यू वांट टू चेंज एनीथिंग इन योर लाइफ, तो आप क्या वो नेगेटिव रिमूव करोगे? सो नाउ आई से नो, आई विल नेवर गो बैक एंड चेंज एनीथिंग इन माई लाइफ, बिकॉज उस हर चेन ने मुझे आज यहाँ पहुँचाया कि मैं एक्सेलचर के ऑफिस से आपसे बात कर पा रही हूँ. Thank you, Upasana ji. It was an excellent interview we had with us, Karan Singh at camera. Thank you.